Namaskar, hello and welcome. This is Dr. Speak, your daily show where for the next 1 hour you can raise all your medical queries that are related to the COVID-19 pandemic as well as the lockdown. You may have concerns about, well, in general, the situation that you're seeing around you, or if you have any pre-existing conditions, you may have queries about that as well. And we're here to help you out with them because we have all the experts, doctors in our studio also joining us on video link, and they can respond to any of your queries. All you need to do is to call the two numbers that are at the bottom of your screen, and you can also raise your queries on social media on DD News' Twitter handle. There is a pinned tweet there that you can reply to and put your questions there at DD News Live. That's the handle, and on DD News' Facebook page as well, all the queries that you have related to this pandemic as well as the lockdown. I'm Gautam and with me is Rajni. बहुत बहुत शुक्रिया गौतम। तो डॉक्टर स्पीक एक ऐसा शो जहां पर आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलता है, अपनी समस्याओं का समाधान मिलता है कोविड संक्रमण को लेकर। और दुनिया जिस न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रही है, क्या हमारी सेहत उस बदलाव के लिए तैयार है? हम अपनी सेहत को लेकर अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली में किस तरीके के बदलाव करें, इस न्यू नॉर्मल के लिए हमारी सेहत कैसे तैयार हो, इस पर भी हम बात करेंगे अपने विशेषज्ञों से। उनका आपसे तारुफ करवाएंगे गौतम। Yes, and let me remind you that this is a show which is bilingual. We have Rajni for all your queries if they are in Hindi. अगर आपको हिंदी में सवाल करने हैं तो आप वो सवाल हिंदी में भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब भी हिंदी में जवाब देंगे और आपको हम इंट्रोड्यूस भी करा देते हैं, मिलवा देते हैं हमारे जो विशेष मेहमान हैं आज के लिए। उनके साथ डॉक्टर सुरेश कुमार is with us. He is Professor and Head Department of Medicine, Maulana Azad Medical College. He is in our studio with us, and joining us on video link is Dr. N.N. Mathur, Director, Lady Harding Medical College, and we also have Dr. Manish Suneja, Additional Professor of Medicine, AIIMS, Delhi. And let me come to you, Dr. Kumar, first and ask you, the WHO has said that, by now the virus is more or less, it could be endemic. That means it will be around for a long time to come, perhaps for all time to come. And that raises its own questions as to how our conduct should be, as part of our lives now, henceforth, because we are also looking at a situation where the lockdown will be extended, and the Prime Minister has indicated that it will be a new kind of lockdown, indicating what Rajni referred to as the new normal. You are right. The WHO has said that it's now affecting larger number of countries and diseases not existing for months, and it's time now that there is a resurgence of the virus in many countries, and not only it's pandemic, now it's becoming more and more in the society, in the population for a longer period of time, and it to develop the immunity and to have the virus clearance from the society will take longer time. And we need to see in the long term. It's not a matter of 1 month or 2 months. It can resurge, it can come again, and we have seen that some of the patients are getting reinfection. So this is a new problem with this virus, and the virus dynamics are changing as we have the more and more knowledge about this virus. More and more research is focused on the epidemiological studies and the behavior of virus, and the more and more subclinical and asymptomatic cases are there in the society. And in the particular earlier we were only focusing on the hotspot and the area where you have a large number of the population affected, but now our focus is more on the district level, peripheral level, rural areas. Rural areas so far they are free from the virus, but with this lockdown getting relaxation, and there is a mobility of the population from the cities to the B-grade cities or even in the villages, the more and more people are at risk, and more exposure is taking place. And as already we have discussed that more care has to be taken in terms of the hand washing, in some of the homemade masks, and the social distancing. This need to be in practice for a longer period of time rather than for few weeks or few months. डॉक्टर सुरेश, बड़ा अहम सवाल है, लॉकडाउन का स्वरूप
बदल रहा है, चीज़ें अब थोड़ी दी जा रही है, लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। सवाल ये है कि इसके लिए हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट, अगर हमारी जो पूरी सेहत की व्यवस्था है, मेडिकल की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, वो कितनी तैयार है और उसको कितनी बदलाव की ज़रूरत है? हमारा जो चिकित्सा का जो सिस्टम है वो 3 टीयर्ड स्ट्रक्चर है। प्राइमरी हेल्थ केयर है जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है और टॉप पे आपका मेडिकल कॉलेज लेवल है, उसको हम टर्सरी केयर सेंटर्स कहते हैं। ज़्यादातर टर्सरी केयर जो मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच्ड है, मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, दे आर द टर्सरी केयर्स। सो वी हैव द रोबस्ट health system in the cities, but at the same time the effectiveness of the primary health care and the effectiveness of the health care in the rural area is we are slightly behind. You can see that the labs are not there in the rural area. The RT-PCR testing facility is not available in the rural area, and most of the labs which are doing the, whether it's a rapid testing or the RT-PCR, they are more in the metro cities or by and large at the district hospitals. But when you go to the tehsil level or block level or in the rural area, the testing facilities are not there. So government, every state government is trying to make a more and more testing facility at the peripheral level. So this 3-tier structure is there, and we need to have more contact with the primary care, because every citizen is important, and you have seen that the rural area are most of the doctors are, even the doctor patient ratio is less in the block level and in the panchayat level. So that need to be augmented. Right, let's bring in Dr. Manish Suneja as well, Additional Professor of Medicine, AIIMS Delhi, while we wait for our callers to connect with us, or for people to send in their queries on Twitter and Facebook. Dr. Suneja, the query that is often raised in these shows is that we've seen that in the course of this pandemic running through the country, even healthcare workers have been at risk, and some have even contacted the disease. Now, it's not as if they're not observing these precautions, and yet they've got the infection. So to what extent should people in general be concerned about that, the fact that they've taken precautions and yet they've got infected? जी गौतम, अभी डॉक्टर मनीष हमसे नहीं जुड़ पाए, तो डॉक्टर सुरेश आपसे ही सवाल का जवाब लेना चाहेंगे. Can you repeat the question? What was the question? जी डॉक्टर सुरेश, गौतम पूछना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनमें उन्होंने पूरी प्रिकॉशन ली, पूरी सावधानियां रखी, उसके बावजूद अगर वे इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, उनमें वे लक्षण बाद में दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक तरीके की असमंजस की जो स्थिति है वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है. हाँ जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो शुरू में एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई लक्षण नहीं होता है, और जब वो टेस्ट कराते हैं किसी और वजह से तो उनको में पाया जाता है कि उनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होता है, उनको हम कहते हैं एसिम्टोमेटिक कैरियर्स. सो दीज टाइप ऑफ पेशेंट्स आर मोर इन द यंगर पॉपुलेशंस लेस देन 60 years. वी हैव द एसिम्टोमेटिक कैरियर्स. इन लोगों में जिनमें कोई लक्षण है नहीं है, जैसे कि बुखार नहीं है, कोई गले में प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनको सिर में दर्द नहीं है, डायरिया नहीं है, और पेशेंट चलते फिरते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, नॉर्मल हाउस होल्ड एक्टिविटी करते हैं, और देखने से नहीं लगता है कि ये बीमार हैं. इनको हम हेल्दी कैरियर कहते हैं, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है और उनमें लक्षण अपीयर नहीं होते. सो एसिम्टोमेटिक जो कैरियर है, उनसे पर दूसरे बुजुर्गों में या जिसके भी वो कांटेक्ट में आते हैं, उससे ट्रांसमिशन की संभावना काफ़ी हद तक रहती है. तो ये एक नया चैलेंज है कि जो सिम्टोमेटिक है उनसे तो हम पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ये बीमार है, इसको खांसी हो रही है, इसको सांस में तकलीफ है, इसको बुखार है, पर उन लोगों से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जो कि बिल्कुल चलते फिरते हैं और एसिम्टोमेटिक है, बट स्टिल उनमें भी वायरस है. सो ये एक बड़ा चैलेंज है हेल्थ केयर सिस्टम के लिए. Right, we are now connected with Dr. N.N. Mathur, Director, Lady Hardinge Medical College. And Dr. Mathur, welcome to Dr. Speak. Just wanted to ask you, now that we're looking at a situation where a stimulus package has been announced by Prime Minister Modi, we've seen the Finance Minister make certain detailed announcements about it as well.
how the MSME sector is looking to be supported with a major tranche of this package. We are also looking at a situation where the lockdown will be extended. Lockdown 4.0 will come in, but it will be a new kind of a lockdown. There will be perhaps lesser restrictions. Now, as a physician, to what extent should these restrictions be relaxed? Because people are looking to get back to normal life as well, but at the same time, they do know that precautions have to be taken. So it is very important that we maintain the discipline which we tried to maintain 1.5 months back when the lockdown was started. And it has to be further intensified, the self-discipline, because there will be certain release phenomena, so to say, when the lockdown is withdrawn gradually, that people may not be that cautious anymore for social distancing and things like that. So it is of paramount importance that when we open up economically and we open up our lockdowns and withdraw lockdowns or release the things little bit, we maintain the social distancing, the wearing of the mask, hand hygiene, and follow it very rigorously, and rather more rigorously than what we were doing while we were in the lockdown, because now we will be intermixing with the people, the population will be intermixing, so it is very important. बिल्कुल डॉक्टर माथुर आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं रायपुर से, आकाश जी। आकाश, अपना सवाल पूछिए। जब सवाल पूछेंगे तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिएगा। जी आकाश, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते। मेरा ये सवाल है कि जैसे कहीं ऑफिस में है, वहाँ जैसे घड़ा रखा हुआ है, घड़ा के साथ में पानी तो लेता है उसके साथ, या उसका उंगली कभी डूब जाता है, जो भी है, या हो सके वो किसी कोरोना वायरस से हो या ना हो, तो क्या उनसे दूसरे में भी फैलाव होने के चांसेस हैं? आकाश, डॉक्टर सुरेश, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं था, आवाज आवाज थोड़ी। आकाश, आप अपना सवाल करेंगे? आकाश, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जैसे सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कहीं ऑफिस है, वहाँ 5 आदमी 10 आदमी काम कर रहे हैं, मतलब 5 आदमी हैं, उसमें एक आदमी कोई पॉजिटिव है या नहीं है, वो घड़े में जैसे पानी था, उसका हाथ उसमें डूब गया, तो क्या उससे क्या फिर दूसरे में भी उस पानी क्या संक्रमित हो जाएगा वो पानी? जी 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 आकाश, डॉक्टर सुरेश, यहाँ पर बेसिक हाइजीन की अगर हम बात करें तो लोग उसी से जुड़ा शायद आकाश का सवाल है कि अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं या सार्वजनिक जगहों पर जा रहे हैं तो वहाँ पर कैसे बेसिक हाइजीन का ध्यान रखें? उनका क्वेश्चन है कि यदि पानी एक साथ पी रहे हैं और एक ही गिलास से पानी पी रहे हैं, और यदि घड़े में पानी है या किसी कंटेनर में पानी है और एक दूसरे उनके साथी ने पानी पिया और उनमें क्योंकि लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है वो, और यदि उसको कोरोना का जो वायरस है वो है, तो क्या उससे ये बीमारी फैल सकती है? ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत सही है, और क्योंकि यदि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो हम पता नहीं लगा सकते कि इसको इन्फेक्शन है या नहीं है, पर इसमें एक बेसिक सावधानी आपको बरतनी है कि इस तरह का जो कॉमन कंटेनर है वो आपको यूज नहीं करना है, जो पानी है वो आपका सेपरेट होना चाहिए, और आप जब पानी अपना अलग से आप कंटेनर में रखेंगे और उसको हाथ को आप अच्छी तरह से धो लेंगे यूज करने से पहले, तो आपको इन्फेक्शन का जो दर है, रेट ऑफ इन्फेक्शन है, यदि आप डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, तो वो वायरस यदि है तो भी वो वायरस नष्ट हो जाता है और इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो काफी कम हो जाता है। अपनी तरफ से भी सावधानी रखना जरूरी है। और इस बीच कश्मीर से हमारे साथ सैयद हलाल जुड़ गए हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो सर मेरा सवाल है कि जो हम बाजार से सब्जी लाते हैं, हमें किस तरह इसका इस्तेमाल करना है, इसमें क्या वायरस का कोई चांसेस होता है? जी सैयद, आप एक बार और सवाल दोहरा लीजिए, आपका सवाल जो है वो साफ तरीके से पहुंचा नहीं हम तक। मेरा सवाल है कि जो हम बाजार से सब्जी ले आते हैं ना आजकल, सब्जी जी, इसका किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब वायरस का कोई चांसेस होता है? जी ओके डॉक्टर
Mathur, did you get that question? He was asking about basically not just vegetables, I think purchases, general purchases of provisions from the market. What one needs to do with them to ensure that they are safe. So precaution remains the same, that whatever you bring from market should be kept for some time and not used immediately, maybe if they are not in the packet, and so that the virus dies and use later on, or you wash them completely and then use it. If there is a vegetable, then you can wash them and then use it. The washing methods have been described. You can use the plain water with little bit of salt or soda in it and wash it thoroughly. But one must understand one thing, that of course it can transmit through fomites, but the main transmission, the main mode of transmission is from our respiratory hygiene, if it is compromised. So main transmission is because of the cough and the sneeze and the virus getting through that route, rather than through the fomites and things like that. So you have to be careful for the fomites, but not you should not be becoming sort of a bothered about it. All right. We have another caller, Mr. Dubey, joining us from Bhopal. Dubey ji, आप अपना सवाल करिए please. जी, मेरा सवाल ये है कि कितना वायरल लोड होने के बाद सिम्टम्स दिखने लगते हैं. सिंपल एक्सपोजर इज सफिशिएंट और देयर इज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वायरल लोड दैट कॉज द सिम्टम्स टू गेट अपीयर. Okay. Bit of a technical question there, Dr. Kumar. Would you like to take that? Yeah. This is a more a scientific question than a question for the general public, but I would like to tell you that this viral load is more important in case of HIV. Viral load is more important in case of hepatitis B and hepatitis C. Viral load is significant here also in the coronavirus, but you see, if viral load is high, it is more there in the body secretions, saliva, respiratory epithelial secretions, and more in the stool and the biliary secretions, pancreatic secretions. So if you see the ICMR guidelines, the viral load, whether it's a qualitative or quantitative, is not routinely done for coronavirus, for COVID-19 infection. It is just we see whether the virus is multiplying or replicating or not. That is the main scientific basis of RT-PCR. So RT-PCR tell us that the virus is there and virus is multiplying. Means it's an acute infection. So the RT-PCR gives you the idea about the RNA. Okay, so viral load, if you see the copies of virus per microliter or per ml, is more for a research purpose, that initially we have this much of viral load and after treatment or after the few weeks that virus is cleared. But I can tell you that the virus is there, and if load is there, the symptoms are less. If viral load is high, symptoms are more aggressive, the patient is more sick. And some of these patients who are immunocompromised, in these patients the viral load is high, like the patient who are using steroid, and patients who are diabetics and the immunity is low, elderly patients and the children. So in these patients immunity is low, and so the viral load is high. So you have the more symptoms. When your viral load is less, you may have the less symptoms and virus is cleared. Or you could also be asymptomatic. Or it could be asymptomatic. उम्मीद है दुबे जी को भोपाल से इस सवाल का जवाब मिल गया होगा. इस बीच एक और कॉलर हैं दिल्ली से, शिवदत्त तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं. आपका बहुत स्वागत है, अपना सवाल करिए. नमस्कार. नमस्कार. सर, मैं जहाँ रहता हूँ 10-12 बंदे रहते हैं इकट्ठा मकान में. जी. हेलो. हाँ, बोलिए बोलिए. तो उसमें एक बंदा मैक्स हॉस्पिटल में काम करता है. जी जी. गुड़गांव में. वो यहाँ से करीब 1 हफ्ता पहले निकल गया था. वहाँ चेकअप हुआ था, वो पॉजिटिव निकला है. अच्छा. उसकी बीवी भी पॉजिटिव है, उसके बच्चे भी पॉजिटिव. जी. लेकिन हम लोगों ने जब संपर्क करा तो उन्होंने बोला आप दीनदयाल जाओ. दीनदयाल गए, अभी वहीं से आ रहे हैं हम लोग. तो उन्होंने एक टैबलेट और एक सिरप दे के भेज दिया हमें. अच्छा. हम गए थे, हम ये चाहते हैं मतलब हम लोगों को भी टेस्ट हो जाए सर. जी जी जी.
Dr. Mathur, would you like to take that? It's more a wish than a question, but let's see what could be what Mr. Tiwari could be told about the situation that he's in. So this is a very pertinent question that who is to be investigated. तो जैसे इन्होंने बताया कि ये किसी के संपर्क में शायद आए जो कि हॉस्पिटल में काम करते थे और वो पॉजिटिव हो गए थे, तो वो शायद उनके संपर्क में हैं। अब डॉक्टर्स जो ट्रेंड हैं वो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे, उसमें रिस्क निकालेंगे कि वो कितनी दूर थे जब उनका कांटेक्ट हुआ, कितने टाइम तक उससे कांटेक्ट में थे, उस वक्त जिससे कांटेक्ट में हुआ उसकी क्या पोजीशन थी, और वो उसको कितने सिम्टम्स थे या वो एसिम्प्टोमेटिक था, और ये कितने देर तक उससे संपर्क में आए। बेस्ड ऑन दैट देयर इज अ होल प्रोफॉर्मा by which we come to know whether he has got the mild risk or the moderate risk or the severe risk of getting the infection. And based on that only the advice will be given whether he qualifies for he qualifies as a contact and he qualifies for the sampling or he qualifies for quarantining. So it is done very scientifically and there is a set laid down criteria for that. So if the doctor has told him that there is no need for further investigation, he must have done the risk analysis and come to the conclusion that he doesn't need any further investigation. तो उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा शिवदत्त तिवारी जी। बट इसके साथ ही डॉक्टर कुमार, क्या इनको कम से कम और इनके साथ जो लोग रहते थे जो कि इनके कांटेक्ट में आए, सेल्फ क्वारंटाइन तो करने की जरूरत रहेगी? जी हाँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर है वो पॉजिटिव है और इनके संपर्क में ये आए हैं, तो उनको कम से कम 2 हफ्ते तक उनको आइसोलेशन में रहना चाहिए और ये आइसोलेशन के दौरान ही टेस्ट भी करा सकते हैं। यदि इनको 5 दिन हो गए हैं और टेस्ट नहीं कराया है, जैसे कि बता रहे कि ये किसी हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर इनको सिरप और दवाई दे दी, शायद उनको सोर थ्रोट और यूआरआई के लिए उनको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया होगा और उनको कहा गया होगा कि अभी यदि आपको बुखार हो या आपको सांस में तकलीफ हो या आपको कोई भी सिम्टम्स हो तो वो तुरंत जा कर के किसी भी सरकारी अस्पताल में अपना टेस्ट करा सकते हैं। तो यदि ये इनको सिम्टम्स आते हैं 3-4 दिन के बाद, क्योंकि कई बार ये होता है कि पेशेंट के कांटेक्ट में और तुरंत यदि चले जाते हैं तो 4 दिन से पहले वो नेगेटिव आता है। तो डॉक्टर ने जरूर सलाह दी होगी कि ये कुछ टाइम के बाद दोबारा जाके और सिम्टम्स हैं तो ये अपना टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट तो होना चाहिए इनका, और यदि टेस्ट की सुविधा नहीं है तब तक इनको क्वारंटाइन होना चाहिए। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं तिवारी जी को उस समस्या का समाधान मिला होगा। इस बीच शेफाली जुड़ गई हैं पुणे से। शेफाली, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। है कि मेरे हस्बैंड की एज है 44 ईयर और उनके लास्ट ईयर एंजियोप्लास्टी हुई है, तो वो फार्मा में है तो उनको जाना पड़ता है डेली, तो उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और जाना जरूरी है क्या? जी डॉक्टर माथुर जी, मैं पूरा सवाल नहीं समझ पाया इनका जी। मैं दोहरा देता हूँ। एंजियोप्लास्टी के मरीज हैं इनके हस्बैंड और इनको काम के लिए जाना पड़ता है, तो उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या एहतियात बरतने चाहिए? तो इनके केस में एक रिस्क फैक्टर ज्यादा है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट एंड फॉर विच ही हैज बीन ट्रीटेड एंड सो इन केस में थोड़ी सी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है कि इनके केस में ये जरूरी है कि वो ज्यादा उस नियमों का पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हो सके तो अपने आप को होम घर पे ही रखें क्योंकि इसमें एक रिस्क फैक्टर एक्स्ट्रा है। बिल्कुल डॉक्टर कुमार, यहाँ पर बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरीके से लॉकडाउन अब धीरे धीरे उसमें ईज दिया जा रहा है, ढील दी जा रही है और लोगों के दफ्तर कुछ खुल रहे हैं, कुछ लोगों को जाना पड़ रहा है। एक बड़ा अहम सवाल लोगों के मन में बार बार आ रहा है कि वर्क प्लेस पर हम क्या क्या सावधानियां रखें। बार बार ये सवाल हमारे कॉलर भी हमसे पूछते हैं कि मान लीजिए कि किसी एक दफ्तर में एक जगह पर 4 लोग भी हैं, 5 लोग भी हैं, तो वहां पर किस तरीके की सावधानियां रखें? डॉक्टर कुमार, गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं कि आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करनी है, 1 से 2 मीटर आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है। आपके जो वर्क स्टेशन है, ज़्यादातर हमने देखा होगा कि जो लोग कंप्यूटर पे या
लैपटॉप पे काम करते हैं, वो काफ़ी क्लोज एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो उनको एक डिस्टेंस मेंटेन करने की आवश्यकता है। कुछ लोग जैसे शॉप पे काम करते हैं, बहुत सारे सेल्समैन होते हैं और बहुत सारे उनके ग्राहक होते हैं, तो वो काफ़ी एक जगह काफ़ी कस्टमर्स होते हैं, तो उनको तय करना होता है कि कितने डिस्टेंस पे आप अपने कस्टमर को अटेंड कर सकते हैं, कितनी दूरी पे आप काम कर सकते हैं। जैसे जो भी आपके स्टोर्स हैं, जहाँ पे भी आपने देखा होगा मार्केट प्लेस है, वहाँ पे एक तय कर दिया है कि इतनी दूरी पे आपको खड़ा होना, इतनी दूरी पे आपको बैठना है, और ये जो डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। वैसे भी पूरी तरह से रिलैक्सेशन नहीं है, ओनली 1/3 और मिनिमल असेंशियल मिनिमल वर्कफोर्स इज गोइंग फॉर द जॉब्स। मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज आर ऑपरेशनल एट द 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ और हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ। पूरी तरह से 100% अटेंडेंस अभी किसी भी ऑफिस में नहीं है, तो उसका आपको पालन करना है। कुछ जगह जहाँ पे स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश तय किए हैं, डायरेक्शंस दी हैं कि किस तरह से आपको ऑपरेट करना है, कितना आपको मिनिमम स्पेस आपको यूज करना है, और कैसे आपको अपना जो पर्सनल प्रोटेक्शन है वो रखना है। आपको जो हैंड हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, उसका आपको ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग आपको करनी है। मास्क का प्रयोग, जो होममेड मास्क है, उनका प्रयोग बहुत आवश्यक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप N95 या महंगे वाली मास्क आप यूज़ करें, क्योंकि यदि आप वर्क प्लेस पे हैं तो सिंपल जो घर में आपके जो मास्क कपड़े के बने हुए होते हैं वो आपको पूर्णतया सुरक्षा देते हैं इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए। तो one more मास्क का caller प्रयोग has joined करना us जरूरी from Gurgaon. Ram Bahal, go ahead, ask your question. We seem to have lost that line, but we're getting more questions on social media as well, especially on Facebook. Now somebody is asking about circulation of messages on WhatsApp and other forms of social media, and this is a fairly interesting message, and we need to find out from doctors whether this is correct or not. To my mind, it doesn't seem to be correct, but let's just ask the question. Dr. Mathur, mask is supposed to be used for a limited time. If you wear it for a long time, 1, oxygen in the blood reduces, 2, oxygen to the brain reduces, 3, you start feeling weak, 4, may lead to death. Please advise. This is a question that somebody has asked. So the mask which is made is taking care of all these factors, and it addresses all these things, and it leads to nothing of what you mentioned in the 4 choices. Right. So the mask can be worn for a very long time without any problem. जी, अरुण प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। अरुण, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। कि हमारे घर के बगल में एक वेजिटेबल मार्केट लगता है, तो शुरू में तो वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग एकदम नहीं था, लेकिन उसका थोड़ा हम लोगों ने बदल दिया जगह बैठने का। लोगों का भीड़ काफी होती है, तो हमारा एज भी वैसे 65 के बाहर ज्यादा ही है। दिक्कत यह है कि वहाँ घर में कोई है नहीं, तो मार्केट में जाना पड़ता है सब्जी वब्जी खरीदने के लिए। तो क्या मतलब अगर कोई बगल में खड़ा हो गया कोई आदमी, तो खड़ा हो जाने से ही इन्फेक्शन हो जाएगा, या उसका छींकना या थूकना जरूरी होता है? डॉक्टर कुमार, ये काफी महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 1 महीने में जहाँ पर भी ओवर क्राउडिंग हुई है, चाहे वो दिल्ली की मंडी हो या चेन्नई की, तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा एक हब बन गया था इन्फेक्शन का, जहाँ पर कि लोग बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हो गए थे सब्जी मार्केट में। और दिल्ली में भी आपने देखा होगा आज़ादपुर मंडी में काफ़ी सारे केसेस डिटेक्ट हुए थे, उसके बाद टेम्परेरी उसको बंद किया गया। यदि आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक दूरी बनाए रखें, और जस्ट आप नज़दीक खड़े होते हैं और आपने मास्क पहन रखा है, और दूसरे पर्सन ने भी मास्क पहन रखा है, तो इन्फेक्शन के चांस मिनिमल है, ना के बराबर है। दूसरा आपने क्वेश्चन था कि यदि वो थूक देगा या छींक देगा तो क्या कितना चांस है। डेफिनेटली उसकी इन्फेक्शन की रेट बढ़ जाएगी यदि पेशेंट को सिम्टम्स हैं और पेशेंट अनहाइजीनिक बिहेवियर है, और पेशेंट यदि अपना कोहनी यूज़ नहीं करता है और पेशेंट को छींक आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं और काफ़ी दूरी तक जाते हैं, 1 मीटर दूरी तक जाते हैं। और यदि आप उनके नज़दीक पहुंच गए पेशेंट्स के, जो कि स्नीजिंग कर रहा है या थूक रहा है, और आपके कपड़े पे या आपके क्लॉथ पे वो
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा और इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनसे आपको बचाव रखना है, दूरी बनाए रखनी है और अपने आप को बचाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण I है। hope that answers your question, Arun. We have some more questions coming in on social media. We have a viewer asking us, over 50 families live in our apartment. I see kids playing together and women chatting together as well. Is that safe and should they do that? What precautions do you advise for apartments or housing societies in general? Dr. Mathur. So the precautions are the same. The social distancing has to be maintained, whether chatting, the ladies chatting or the children playing, they have to maintain the same formula of social distance of 1 meter, preferably 2 meters from each other, and washing the hands regularly if they have touched anything which they think had been infectious, and wearing the mask. So the formula remains the same. जी, मास्क बड़ी अहम भूमिका इस वक्त पे निभा रहा है, एक तरीके से हथियार है कोरोना से लड़ने का। डॉक्टर कुमार, आपसे सवाल है कि इस वक्त पर अब अलग अलग तरीके के मास्क लोग पहन रहे हैं, कई जगह कपड़े के मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके का होना चाहिए? एक लेयर से काम चल जाएगा या उसको डबल लेयर बनाना जरूरी है? ये बार बार दिमाग में सवाल आता है, क्या केवल एक पतले कपड़े का मास्क पहनने से भी बचाव हो सकता है? ये भी बहुत लेटेस्ट आपका क्वेश्चन है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे डिजाइनर मास्क आ गए हैं, बहुत सारे छेद वाले मास्क आ गए हैं, कुछ ऐसे जिसमें कि लिप्स दिखाई देते हैं। सो दिस टाइप ऑफ दिस डिजाइनर मास्क आर यूजुअली गिव द सूडो प्रोटेक्शन। आपका जो मास्क है वो आपका नाक वाला हिस्सा और मुंह पूरा कवर होना चाहिए, और यदि आपका लिप्स उसमें एक्सपोज है, बाहर निकल रहा है, तो वो सेफ नहीं है। आपने पूछा जो ट्रिपल लेयर मास्क हैं वो सर्जिकल मास्क हैं और ज़्यादातर जो है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हैं या उनके लिए जो कि ज़्यादा एक्सपोज होते हैं उनके लिए हैं। सिंपल जो मास्क हैं, जो होममेड मास्क हैं, कपड़े के जो मास्क हैं, कॉटन के मास्क हैं, जो पूरा साइज को कवर करते हैं, आपके नाक वाले हिस्से को और माउथ वाले हिस्से को, वो ज़्यादा सेफ हैं। और उसके लिए आप उसका जो मास्क है उसको आप घर में धो के दोबारा भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मास्क एक बार यूज किया और उसको फेंक दिया, डिस्पोजेबल, ऐसा नहीं है। जो होममेड मास्क है वो लंबे टाइम तक आप यूज कर सकते हैं। But not, that is not true in the case of surgical masks. That is not. These surgical masks are more commonly used for healthcare workers. जैसा आपने लगाया। हाँ, so ये ट्रिपल लेयर मास्क है क्योंकि हम तो हॉस्पिटल में काम करते हैं, इसलिए हमें ये पहनना आवश्यक है। Dr. Manish Suneja is also with us now, additional professor of medicine, AIIMS Delhi. Welcome to Dr. Speak, Dr. Suneja. Let me put you the question of one of our viewers, Akshay Kumar. He's tweeted to us. And this was a question that was asked earlier as well on the show. How to take care if someone is a health worker for COVID? He says that his mother is working for COVID patients and he's worried about her. Sorry, I didn't get the question. We have a viewer asking that if somebody is a health worker working with COVID patients, how should that person be taken care of? What precautions should that person be taking? Okay. So, like some healthcare worker is working in a COVID area, so obviously would be protected with all the personal protective equipment that is required for that area. So, until and unless he is not having an exposure without the personal protective equipment, there is no extra precaution that he needs to take. That is all for general public that is advised. He can go back and stay as such. So, there is nothing such extra that he needs to do. Okay. Go ahead. जब हम कर रहे थे डॉक्टर कुमार, आपसे बात चल रही थी क्लिनिकल मैनेजमेंट की, और जब पीएम ने भी कहा है कि रूरल एरिया तक अब इस संक्रमण को बढ़ने से हमें रोकना है, वहाँ ज़्यादा इसे फैलने से रोकना है, आप किस तरीके के बदलाव चाहेंगे या किस तरीके के आप प्रबंध की अगर बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो आप देखते हैं खासकर अब जबकि मजदूर भी जा रहे हैं वहाँ पर गाँव में, तो किस तरीके के आप वहाँ पर जो लोकल हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस हो सकते हैं?
सबसे महत्वपूर्ण है कि सब लोगों में जागरूकता हो, इस बीमारी के बारे में जानकारी हो कि किस तरह से ये वायरस फैलता है। प्रिंट मीडिया में, टेलीविज़न के माध्यम से गांव में भी अब सब लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, बहुत ज़्यादा लोग को इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से ये वायरस फैलता है और कैसे इसे बचा जा सकता है। पर फिर भी गांव में भी सब लोगों को अब खुद लोग होममेड मास्क का प्रयोग गांव में भी कर रहे हैं। ज़्यादातर जो ग्रामीण हैं वो खुद मास्क का यूज़ कर रहे हैं और उनको भी अब पता है कि जैसे वहाँ पे चौपाल होती हैं पहले और वहाँ पर सोशल गैदरिंग गांव में ज़्यादा होती है और एरिया कम होता है। लोगों के जो हाउसेज हैं, जैसे कुछ पक्का हाउसेज हैं, दे आर लिविंग मोर इन द क्लोज एनवायरनमेंट, सो दे नीड टू बी एजुकेटेड दैट यू हैव टू मेंटेन ए सोशल डिस्टेंसिंग। उनको एक दूरी बनाए रखना है। उनको जो सोशल फंक्शंस हैं, गैदरिंग्स हैं, जो भी गांव में जो फंक्शंस होते हैं उनमें गांव में एक आत्मीयता ज़्यादा होती है और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जाता है, क्योंकि शहरों में तो हम पड़ोसी ऊपर वाले नीचे वाले को भी नहीं जानता है और मिक्सिंग नहीं होती है। पर गांव में क्योंकि मिक्सिंग बहुत ज़्यादा होती है, कई बार ऐसा होता है कि गांव में जो नल है वो एक ही होता है और वहाँ पे बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनको भी एक शिक्षित करने की ज़रूरत है कि बारी से अपना पानी लें, दूर खड़े हों। और ये सब बातें अब गांव में भी पंचायत लेवल पे भी, जैसे कुछ स्टेट्स में पंचायत लेवल पे ऑलरेडी ये प्रोग्राम चल रहा है कि उनको समझाया जाए कि किस तरह से इस वायरस को से बचाया जा सकता है। और गांव वाले काफ़ी इस बारे में भी चिंतित होते हैं कि कोई बाहर से आके उनके गांव में ना बसे, और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसके बारे में और ऐप के बारे में, जो ये ऐप मोबाइल ऐप है, इससे काफ़ी हद तक समस्या गांव की हल हो सकती है, क्योंकि मोबाइल अब सभी के पास यूज़ हो रहा है, सब इन्फॉर्मेशन मोबाइल पर है। और जो ऐप है ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है रूरल एरिया में। जी, we have another caller joining us, Jalal Srivastava from Mumbai. Go ahead, Mr. Srivastava, ask your question. Mr. Srivastava, are you with us? Well, we seem to have lost that call, but Dr. Suneja, in terms of again rural communities, as Dr. Suresh Kumar said, there is a lot of awareness among the people, but he mentioned that Arogya Setu will be a very good instrument to download onto your phones. But a lot of people in villages also have feature phones, and you feel that, and pretty soon I'm sure we're about to get a version of Arogya Setu for feature phones as well. How useful do you think a feature phone version of Arogya Setu could be? Yes, so that would be useful, but I think there are many more measures that really needs to be taken. For example, Dr. Suresh did talk about this prevention. But the second very important thing that we need to communicate with our people in village is that people have comorbidities. उनको और भी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया या किडनी की बीमारी है। तो ये बहुत जरूरी है कि वो इन बीमारियों को भी अच्छे से इलाज करें और उसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि अक्सर पाया गया है कि जब कोरोना वायरस इन्फेक्शन किसी को होता है और इनकी ये जो अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटीज हैं वो ठीक से कंट्रोल नहीं होती हैं, तो दिक्कत आती है। तो बहुत अच्छा है कि आरोग्य सेतु ऐप है, इसको फीचर फोन में भी लाना चाहिए और इस तरह की तमाम जानकारियां हम अपने विलेजेस में भी ये कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे कॉलर जो हैं वो मुंबई से जुड़ गए हैं हमारे साथ। जलल श्रीवास्तव जी, अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Yeah. So as we know, the vegetables have to be cooked, washed properly and cooked. So, but what kind of precautions should be taken for the fruits which has to be ate as a raw fruit and all? What kind of precaution we should take? Okay, Dr. Mathur, would you like to answer that? Vegetables are cooked, but what about fruits? Fruits. So precaution is just simple. Just if you get the fruits, just wash them thoroughly in the running water, or add soda, salt in it, and just wash them thoroughly and you can eat. See, we must remember, though it is technically possible and theoretically possible for you to get virus this, but usually virus, the mode of transmission and infection is by bad respiratory hygiene. So if there is a compromise in that, then they are more likely
to patients to get infected that way, rather than through the fruits, vegetables, and touching a chair on which some patient supposedly of corona was sitting. So these theoretically can, yes, it is possible, but we should be bothered more about the common ways in which the virus gets transmitted. 90% of the 99% of the virus transmission will be by the somebody person to coughing person. near you or sneezing near you, or you are very much close in contact with his breath. Got it, Dr. Saab. We have another caller joining us from Goa, Rajesh. Rajesh, go ahead. Rajesh, can you hear us? It seems we lost that call at the moment, but we have some other questions that are being raised in social media. One question is, and Dr. Kumar, if you could answer this, why are we not doing multiple testing through one testing kit? This will increase the total testing as happened in Germany. Would you like to respond to that? You see, what they have done in the Germany and in the South Korea, that the large number of population is tested. So the focus is more and more tests, and more people will be identified that this number, X number is infected or Y number is infected. And there are two types of testing. One is the rapid testing and another is RT-PCR method. Right. This rapid testing only launched just 2 days back by the National Institute of Virology, Pune, and this is now patented, and this whole system developed in our country. The robust team of scientists in the National Institute of Pune, which is the prestigious institute in our country, that we have developed this rapid testing where the sensitivity and specificity is more than 95%, ranging up to the 98.2%. So this is now commercially available in India, and already ICMR has started this project in more than 50 districts, that they can detect antibody in the public who are asymptomatic. So government is doing everything possible that more and more testing is ordered in the periphery, in the districts and in the rural area, and we can know the magnitude of problem, because now more and more testing is in the metro cities, where the more labs are there, more government facilities are there. But because this testing, RT-PCR is a highly specialized test, it is very costly test, costing around 4,500 per test, but this test is not available in some of the areas. So in that, the rapid testing is now already patented, and already commercial production has been started. And this person asking about pool testing as well. So that pool testing is also done in some of the countries, and our country is also adopting very robust method of testing, and so far we are highly successful. ICMR is doing lot of trials in the testing, and more testing is already going on, even for the SARI. The SARI means the severe acute respiratory infection cases, and those who are also asymptomatic, for the community surveillance. Right. So all this is going on. तो सारे रास्तों पर ही काम चल रहा है, सारे मोर्चों पर। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। और इस बीच ओम प्रकाश जुड़ गए हैं दिल्ली से अपने सवाल के साथ। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए। नमस्कार सर सबको। नमस्कार। अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लें पीछे से। ठीक है सर। सर मेरा सवाल ये है कि क्या कहते हैं, जैसे एक फैक्ट्री में वर्कर्स आ रहे हैं जो आजकल प्रेस्क्राइब लिमिट के अनुसार, वो सुबह आते हैं, उनका फीवर वगैरह चेक किया गया है तो फीवर नहीं है उनको, और शाम को वो जाते हैं अपने घर लौट जाते हैं, और फिर अपने किसी यार दोस्त के साथ मिल बैठते हैं, तो उनको पता नहीं कि वो पॉजिटिव हो गए हैं या नहीं। अगले रेगुलर आ रहे हैं, 3-4 दिन तक वही थर्मल स्कैनिंग जो है प्रोसीजर चल रहा है, तो इस दौरान एक कोई लड़का अगर पॉजिटिव हो जाता है और वो और सभी चीजों को क्या कहते हैं छूता है, वो चीजों को, उन ऑब्जेक्ट्स को भी वो अगर हो जाती है चीजें, तो हमें कैसे पता लगेगा ये कितने दिन बाद उसके अंदर इफेक्ट आया है? डॉक्टर सुनेजा, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए ऐसा है कि सिर्फ फीवर ही इसके फीचर नहीं होते हैं,
कोरोना किसी को इन्फेक्शन होने से फीवर, कॉफ या सांस की दिक्कत हो सकती है। तो चाहे आप थर्मल स्कैनिंग कर रहे हो, इसके बाद भी ये बहुत जरूरी है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, मैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहूँगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें फैक्ट्रीज में या ऐसे जहाँ पे भी लोग काम करते हैं। 6 फीट का डिस्टेंस सबके बीच में रखें और ये डेली क्लोज मॉनिटरिंग करनी होगी। इसमें जागरूकता की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि किसी तरह से एक स्टिग्मा सा भी आ गया है। लोगों को बुखार होने से बात को छुपा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो पेशेंट है वो देर से पहुंच रहे हैं। तो इसलिए जागरूकता की बहुत जरूरत है। हर एक नागरिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी अपने वर्कर्स को, सबको ये बताएं कि फीवर होने पे वो बताएं, उसको छुपाएं नहीं। तो इस तरह से अगर लोग सब सामने आना शुरू करें, बुखार चाहे एक दिन का हो, सामने आके खुद बताएं कि हमें बुखार है, फिर उसके उपयुक्त उसके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से हमें इसे एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसी तरीके से हम इस चीज से लड़ सकते हैं। जी डॉक्टर माथुर, आपसे जानना चाहेंगे, अनिल माथुर डॉक्टर, बड़ा ही अहम सवाल उन्होंने कहा है, डॉक्टर सुनेजा ने जो बात की है, स्टिग्मा से जुड़ी हुई बात की है कि कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ अक्सर ये चीज़ जुड़ जाती है, ठीक भी हो जाते हैं, उसके बाद जो समाज का व्यवहार है वो बदल रहा है, उसे हमें रोकना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि कहीं ना कहीं मरीजों की मानसिक सेहत पर भी बुरा असर डालता है? जी, मानसिक सेहत पे बुरा असर डालता है, लेकिन एक चीज हमें 2 चीजों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक तो आइडेंटिफाइंग पर्सन हु इज गॉट प्रॉब्लम, हु इज गॉट इन्फेक्शन सपोजिडली और इज सस्पेक्ट। दूसरा है स्टिग्मा। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन इज करेक्ट, नहीं तो आप फिर प्रिकॉशन कैसे लेंगे? लेकिन स्टिग्मेटाइज द रिएक्शन टू that identification, which is stigmatization, that is wrong. That should not happen, and people should be educated. Anybody can get corona infected, but that doesn't mean that he has to be stigmatized for that, or he is penalized. In fact, he is to be supported in every way possible, especially if he is a healthcare worker and he gets during performance of his duty he gets infection. He is to be supported. So stigmatization is wrong. Identification part is correct, and the panic attacks and the psychological problems which are coming up with this infection are on rise. That is true, and they are being tackled by the psychologists and the psychiatrists in every hospital. All right, a lot of hospitals have also opened up consultations. You can consult over the phone or even through video means, as we are speaking to our health experts as well. I have a couple of more questions on social media. Somebody is asking, what is the effect of corona infection in patients who are on dialysis at the level of internal organs? What special precaution do they take? And someone's also asking about asthma patients, how to take care of them in this COVID-19 pandemic. Dr. Suneja, if you could respond to that. तो जैसे कि पहले बताया, हम ये देख रहे हैं कि जो मरीज कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, चाहे वो किडनी डिजीज हो या ब्रोंकियल एस्मा हो, डायबिटीज हो, किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, तो अगर वो ठीक से कंट्रोल नहीं है, दवाइयाँ ठीक से नहीं ले रहे हैं या छूट गई है, तो ऐसे लोगों में ही कोरोना जो है ज्यादा सीवियर हो रहा है। तो कोरोना को छोड़ के जो अपनी ये जो बीमारी है, ये बहुत जरूरी है कि इस वक्त आप अपनी सारी दवाइयाँ ठीक से लें। आपकी जो भी दिक्कत है, पहले से जो दवाइयाँ चल रही है वो लेते रहें, कुछ और बढ़ाने की जरूरत है, अपने चिकित्सक से परामर्श करें, दवाइयाँ लें और उसको कंट्रोल में रखें। चाहे वो कोई भी बीमारी हो, आपको उसको अपनी दवाइयों के साथ कंट्रोल रखना है, ताकि इसके बाद जब कोरोना हो जाता है तो कोई ऐसी दिक्कत ना आए। जी, high risk group. May I add to this? So we have the 90 patients right now who are on dialysis. They are corona positive and they are on twice or thrice weekly dialysis. So more than half of the patients do very well even on the dialysis. We have successfully treated them, dialysis patients, more than 50 patients we have dialyzed them, and the virus become negative within 10 days. Okay. But some patients, if patient have
acute renal shutdown, and those patients who require dialysis in the ICU, they are really sick, and the chances of death is much more in the acute setting rather than the chronic kidney disease. CKD patient on maintenance dialysis, they do very well if the dialysis is taken care well, and if their diabetic blood sugar is taken care of well, they do very well. So there is no need to fear that the dialysis patient who are on maintenance dialysis for a longer period, they are doing well recovery if they are properly dialyzed in the time, and their other systems are doing proper functioning. Okay. We have another caller from Amravati, Namdev. Go ahead, Namdev, please ask your question. जी सर, मेरा सवाल यह है कि मैं एक व्यवसाय करता हूँ, तो जो कस्टमर्स आते हैं तो उनसे अपन जो पैसे लेते हैं, या तो कुछ चेक लेते हैं या तो फिर उनके साथ में जो बिल का आदान प्रदान करते हैं, उसमें अपने को किस प्रकार से सावधानी बरतना है? ओके, डॉक्टर सुरेश कुमार, आप ही इसका जवाब दे देंगे किस तरह से एक दुकानदार को अपना कारोबार चलाना चाहिए, क्योंकि उसमें शायद लोग कार्ड भी पकड़ाते हैं, कैश भी देते हैं, और सामान का तो आदान प्रदान होता ही है। हाँ, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि करेंसी नोट से क्या वायरस फैलता है क्या। यदि किसी को सिम्टम्स हैं, स्नीजिंग करता है पेशेंट, और यदि उसका सलाइवा से कॉन्टैक्ट और पेशेंट्स को सिम्टम्स हैं, और सेम करेंसी नोट्स आर यूज्ड for the marketing or for the purchase of essential commodities, there are certain case report. There is no big data, scientific data on these type of currency note causing spread of virus. So more data is required for this type of modes of transmission. मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब माथुर साहब से बोला भी था कि 90% का तो डेटा ये है कि पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली होने से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, किसी और वस्तु से शायद उतने केसेस डॉक्यूमेंटेड नहीं है। More digital this transaction should be adopted, so that is better. जी, बहुत सारी क्वेरीज जब आती हैं और बहुत सारी गलत फहमियों की भी लोग बात करते हैं, ग्लव्स को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। डॉक्टर माथुर, आपसे जानना चाहेंगे, लोग ग्लव्स पहनकर बहुत देर तक खासकर दफ्तरों में काम कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, बार बार हाथ धोना ज़्यादा सही है या ग्लव्स पहनकर काम करना? क्योंकि लोग ग्लव्स पहने रहते हैं, उनको ही सैनिटाइज करते रहते हैं, उनको ही धो लेते हैं और फिर उनको पहने रहते हैं। बिल्कुल, ये कितना सही है गलत है? हम समझते हैं कि ग्लव्स पहनना हेल्थ केयर वर्कर के लिए जरूरी है, ना कि नॉर्मल अगर कोई काम कर रहा है, डेस्क पे काम कर रहे हैं तो उनको जरूरी नहीं है। उनके लिए हैंड सैनिटाइजेशन से बेटर कोई चीज नहीं है, चाहे वो हैंड सैनिटाइजर हो, चाहे वो बार बार हाथ धोना हो। बेटर ये है कि वो साबुन से अपने हाथ धोएं, 20 सेकेंड तक हाथ धोएं जब भी ऐसा लगे कि उनको संक्रमित किसी चीज को हाथ लगाया है, या बीच बीच में कभी रेगुलर इंटरवल पे हाथ धोए, इससे पहले कि वो अपना हाथ जो संक्रमित है अपनी नाक और मुंह पे ले जाए। बेसिकली अपने संक्रमित हाथ को नाक और मुंह पे नहीं ले जाना है, और उससे पहले कि वो ऐसा मौका आए वो हाथ को सैनिटाइज कर देना है। ग्लव्स पहनना जरूरी नहीं है। और आस्था जुड़ गई है नोएडा से हमारे साथ अपने सवाल के साथ, अपना सवाल पूछिए। पहले तो नमस्ते। और बहुत सराहते हैं आप लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को, कि आप वजह से भारत इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोरोना से लड़ रहा है। हमारा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे कि हमारी मदर 80 इयर्स की है और उनको ब्रोंकियल अस्थमा है, और लास्ट 15 डेज से उन्हें काफी ब्रेथलेसनेस लग रही है। वो मेडिकेशन एवरीथिंग है, लेकिन येट बिकॉज शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ ब्रेथलेसनेस, तो उनके लिए क्या देना या उनको कैसे क्या कर सकते हैं इस मौके पे? डॉक्टर कुमार, आपकी मदर को एक तो एज फैक्टर है, और दूसरा उनको अस्थमा का पुराना बीमारी है। अस्थमा के लिए उनका क्योंकि सीजनल वेरिएशन होता है, जब भी सर्दी से गर्मी आती है या गर्मी से सर्दी आती है तो उसके अटैक्स बढ़ जाते हैं। तो मोस्ट लाइकली जो ये आपके मदर को जो सांस की तकलीफ हो रही है वो अस्थमा के कारण ही हो रही है। उसके लिए आप जो दवाई ले रहे हैं उसमें इनहेलर होंगे आपके, जो भी इनहेलर आप ले रहे हैं उसकी आप डोजेस बढ़ा सकते हैं,
और फिर भी यदि आपको की मदर को आराम नहीं आता है तो आप किसी भी अपने फिजिशियन को दिखा सकते हैं, उनका एक्सरे करा सकते हैं। हो सकता है कि चेस्ट में इन्फेक्शन हो, और यदि बुखार नहीं है और उनको और सिम्टम्स नहीं है तो मोस्ट लाइकली ये अस्थमा की वजह से ही उनका सांस फूल रहा है। फिर भी आपको लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है और वो सो नहीं पा रही हैं और इन्हेलर के बाद भी उनको सांस फूलता है, तो फिर आपको एक टेस्ट करा लेना चाहिए उनका। जी डॉक्टर कुमार, इसी से जुड़ा हुआ बड़ा अहम सवाल है कि वो लोग जो अभी घर पर हैं उनमें किसी भी तरीके का और कोई सिम्टम नहीं है, ना उन्हें बुखार है ना उन्हें खांसी है, लेकिन उनकी सांस फूल रही है। ये बहुत ज़्यादा समस्या लोगों के साथ, जो लोग घर में रह रहे हैं उनके साथ पेश आ रही है कि सांस फूलने, खाना खाते वक्त सांस बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या किया जाए? वो डॉक्टर के पास जाएं, डिस्कस करें, क्योंकि कई लोग डिस्कस करने में भी डर रहे हैं कि उनकी सांस फूल रही है। देखिए, सांस फूलने का बहुत कॉमन कारण है कि यदि खून की कमी है तो आपका सांस फूल सकता है, फेफड़े की बीमारी है, लंग्स का कुछ प्रॉब्लम है तो आपका सांस फूल सकता है। यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली एल्डरली में, यदि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, एंजाइना है, अनस्टेबल एंजाइना है, तो आपका सांस फूल सकता है। या आपको किडनी का प्रॉब्लम है, या कोई भी आपको एल्ब्यूमिन कम है ब्लड में, तो देयर आर मल्टीपल रीजंस, बहुत सारे कारण हैं सांस फूलने के। लंग्स के कारण भी फूल सकता है और दूसरे ऑर्गन की बीमारी की वजह से भी सांस फूल सकता है। कई बार होता है कि हमें खाली एंजाइटी होती है, कि हमें डर होता है कि हम डर की वजह से कि हमें कोरोना तो नहीं है। हमने काफी देखा है कि कुछ लोगों ने डर की वजह से सुसाइड भी कर लिया, दे हैव अप्रीहेंशन कि उनको कोरोना हो गया, जबकि ऐसा है नहीं। यू हैव टू हैव अ साइकोलॉजिकल, द फियर हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द माइंड दैट this is not very serious problem. 80 to 90% you are, even if you acquire the infection, you become all right. So nothing like that. If patient have breathlessness, that it is always caused by coronavirus. It is very rare that if you don't have other symptoms like fever, body ache, loose motion or other features of any of the viral illness, then you are unlikely to have the coronavirus. If you have no history of contact, if you have no history of travel, if you have no history of risk factors, then the just simple breathlessness need not to be worried. Okay, we have another caller joining us from Varanasi now. Navika is on the phone line. Go ahead, Navika. हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, ये पूछना था कि जो आरोग्य सेतु ऐप हमारे पास जो डाउनलोड की है हम लोग, तो क्या उसमें रोज हम लोग को अपनी टेस्टिंग करनी होगी? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे कोई कोरोना संक्रमित है या नहीं? डॉक्टर सुनेजा, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? तो नमस्कार। तो इसमें ऐसा है कि ये आपका रिस्क बताता है कि आपके आसपास लोगों को कितना कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है, जैसे बुखार, खांसी और सांस फूलना, ये तीन चीज में से कुछ भी है, तो आपको उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक और बात मैं यहाँ पे श्रोता ने पूछा, मैं बताना चाहूंगा, इसमें जोड़ना चाहूंगा। जो करेंसी नोट्स की बात की गई, अब इसके बारे में गाइडलाइंस भी आ गई हैं गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के साइट में। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप यानी एविडेंस बहुत कम है कि उससे इन्फेक्शन हो सकता है, पर संभवतः हो सकता है, तो इसलिए उसमें क्या कर सकते हैं कि एक प्रेस है, उसको गर्म करके उसके नीचे कुछ सेकंड्स के लिए रखें, तो दैट वुड बी सफिशिएंट। बड़ी अहम जानकारी है ये। जो लोग नोट या करेंसी को लेकर चिंतित हैं कि क्या किया जाए, तो डॉक्टर सुनेजा ने बड़ा आसान सा उपाय बताया है कि अगर ऐसा नोट आपके पास आता है तो आप उसे गर्म आयन से उसको थोड़ी देर रखिए और उससे आपको राहत मिल सकती है। Right, that's all we have time for as far as Dr. Speak for today is concerned. So I'll have to thank you, Dr. Mathur, as well as Dr. Suneja and Dr. Kumar for joining us in our studio as well to talk about all the queries that are being raised by people. But remember, this is a daily show. You can call again and you can write into us again on our social media platforms, both on Twitter and Facebook. Any and all of your queries related to your health concerning this phase of the pandemic, be it related to the coronavirus or any other health queries that you might have that you feel might get aggravated because of the prevailing situation, which is of course the pandemic and the accompanying lockdown. Feel free to call us. We'll be right here tomorrow as well, the same time, the same channel. Thanks for watching for the moment.